When a batch of freshers joins, everyone starts with the same excitement. But a few months later, only some move ahead. Others, despite hard work, quietly get stuck. They're all working hard, but still, something invisible keeps holding them back. बिल्कुल वैसे ही जैसे आप एक ही जगह पे मल्टीपल प्लांट्स ग्रो करते हैं, सेम सनलाइट, सेम वाटर, फिर भी कुछ अच्छे से ग्रो कर जाते हैं और कुछ रुक जाते हैं. क्यों? बिकॉज देयर आर ऑलवेज सम हिडन फैक्टर्स जो पहले दिखते नहीं पर टाइम के साथ अपना असर दिखाने लगते हैं. कॉर्पोरेट लाइफ इज नो डिफरेंट. कुछ अनसीन रीजंस होते हैं जो आपके करियर को राइट ट्रैक पे आने ही नहीं देते. और सबसे ट्रिकी पार्ट यही है, आपको खुद भी नहीं पता होता कि ये चीजें आपको क्वाइटली होल्ड बैक कर रही हैं. In today's video, we will talk about those hidden career blockers that silently impact your growth. And don't worry, this space is all about growing in your career without losing your peace of mind. So if you are navigating this competitive world, subscribe and let's grow together stress-free. सबसे पहले बात करते हैं procrastination की. Something that quietly slows down so many careers. आपने नोटिस किया होगा, हर टीम में कुछ लोग हमेशा एक्टिव रहते हैं. मीटिंग हो, डिस्कशन हो, दे ऑलवेज हैव समथिंग टू से. और फिर कुछ लोग होते हैं जो सोच लेते हैं कोई तो बोल ही देगा और हम बस प्रेजेंस के लिए बैठे रहते हैं. कॉलेज डेज में भी ऐसा ही था ना. टीचर क्वेश्चन पूछता था और सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स आंसर करते थे, बाकी सब साइलेंटली वेट करते थे, होपिंग समवन एल्स वुड हैंडल इट. मोस्ट पीपल थिंक procrastination means laziness, but that's not true. In corporate life, some people delay work because they don't care, but most do it because they care too much about getting it right. कभी हम डरते हैं, what if I'm not good enough? So instead of facing that fear, we keep pushing it for later. और कभी कभी it's not about mindset, it's about energy. When your mind and body are drained, even a simple task feels heavy. And in moments like that, motivation alone doesn't really help. Clarity does. So before you open that Excel sheet or draft that email, write down what outcome is expected and what first step will move it forward. अगर मीटिंग है या quick discussion, take 2 minutes to prepare. Half the time, procrastination isn't about laziness. It's about not knowing where to begin. तो अगर आप स्टक हैं, talk to your senior instead of silently overthinking. You will realize they value initiative far more than silence. Lastly, notice your energy. If every task feels heavy, take a short break and reset your mind. Because in the end, productivity isn't about speed. It's about clarity, energy, and momentum. But sometimes, that clarity turns into pressure. The pressure to prove yourself too quickly. नए जॉइनर्स में ये पैटर्न कॉमन होता है. जैसे अगर मैनेजर ने बोला 4 टास्क्स हैं, कल तक कर पाओगे, और आप झट से हाँ बोल देते हैं. क्यों? क्योंकि हमें लगता है फास्ट डिलीवरी मीन्स स्मार्ट इंप्रेशन. लेकिन जब टास्क डिटेल में एनालाइज नहीं होता, वर्कलोड और डिपेंडेंसीज समझे बिना कमिटमेंट दे देते हो, तो फिर प्रेशर खुद के लिए क्रिएट हो जाता है. और जब डिलीवरी डिले होती है या क्वालिटी गिर जाती है, द सेम ओवर कॉन्फिडेंस लुक्स लाइक अनरिलायबिलिटी. सो बिफोर यू कमिट टू अ डेडलाइन, पॉज एंड इवैल्यूएट ऑनेस्टली. डू आई फुली अंडरस्टैंड द स्कोप? डू आई हैव द बैंडविड्थ टू डिलीवर विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी? इफ नॉट, communicate a realistic timeline instead of rushing to impress. In the long run, managers remember consistency, not speed. Honesty builds trust, not overcommitment. But even after working sincerely and delivering well, एक नया प्रेशर शुरू हो जाता है. Comparison. किसी की सैलरी थोड़ी ज़्यादा, किसी को बेटर प्रोजेक्ट मिल गया, और हम सोचने लगते हैं, Why not me? मैं पीछे रह गया क्या? It starts innocently, out of curiosity, but gradually turns into pressure to prove your own value. Slowly, you stop seeing your own growth and start chasing someone else's timeline. Imagine opening LinkedIn and seeing new role at XYZ company, और आपका मूड instantly change हो जाता है. लेकिन
सच ये है, स्टार्टिंग रोल्स और सैलरीज कई फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, जैसे कॉलेज बैकग्राउंड, इंटरव्यू टाइमिंग और नेगोशिएशन। इसलिए इन चीज़ों का कंपैरिजन फेयर नहीं होता, क्योंकि हर किसी की स्टार्टिंग लाइन ही अलग है। हेल्दी कंपटीशन pushes you forward, but constant comparison freezes your confidence. हर कंपनी में सब कैपेबल होते हैं, बस स्ट्रेंथ्स अलग होती हैं। अगर कोई प्रेजेंटेशन में कॉन्फिडेंट है तो हो सकता है आप प्रॉब्लम सॉल्विंग में स्ट्रांग हो। सो इंस्टेड ऑफ चेकिंग who's ahead, focus on what's next for you. Track your progress, not someone else's promotion email. Because comparison doesn't show you how behind you are. It hides how far you have already come. And sometimes it's not even comparison that slows you down. It's the company you keep. हर ऑफिस में ऐसे ग्रुप्स होते हैं जहां लंच ब्रेक या कॉफी टाइम का टॉपिक होता है मैनेजर की कंप्लेंट या टीम पॉलिटिक्स। शुरू में लगता है हार्मलेस, बस थोड़ा वेंटिंग आउट है, बट धीरे धीरे वो हैबिट बन जाती है। नेगेटिविटी स्प्रेड्स क्वाइटली। उन लोगों के अराउंड रहकर आप भी दुनिया को उनके लेंस से देखने लगते हो। आपका फोकस शिफ्ट हो जाता है काम से फ्रस्ट्रेशन पर। ये लोग खुद अनसेटिस्फाइड होते हैं और एम्पैथी के नाम पे अपनी नेगेटिव एनर्जी ट्रांसफर कर देते हैं। एज ह्यूमंस वी गेट अट्रैक्टेड टू नेगेटिविटी फास्टर देन ऑप्टिमिज्म, क्योंकि कंप्लेंट सुनना ईजी लगता है पर सॉल्यूशन सोचना एफर्ट मांगता है। So the next time you hear constant complaints about the company or team, observe but don't absorb. Refrain from getting influenced by such groups. क्योंकि एक बार आपका perception bias हो गया तो even good things start looking unfair. Protect your mental space because the quality of your energy shapes the quality of your performance. और कभी कभी नेगेटिव लोग नहीं, हमारी अपनी वेट करने की आदत ही हमें रोक देती है। कभी ऐसा हुआ है आपने टास्क कंप्लीट कर लिया, बट इंस्टेड ऑफ मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप आप वेट कर रहे हो कि मैनेजर देखेंगे, अप्रूव करेंगे या डायरेक्शन देंगे, और दिन के एंड तक काम वहीं पड़ा रहता है। ये हैबिट सबसे साइलेंट करियर स्टॉपर होती है, वेटिंग फॉर वैलिडेशन। और रियलिटी ये है, मैनेजर्स के पास कई बार हर चीज़ मॉनिटर करने का टाइम नहीं होता। उनके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, मीटिंग्स होते हैं या ट्रेवल कर रहे होते हैं, और कुछ एम्प्लॉयज़ इसका एडवांटेज ले लेते हैं और कुछ नहीं करते। मैनेजर अवेलेबल नहीं है तो मैं स्टक हूँ, आगे कैसे बढ़ूँ? बट द ट्रूथ इज मैनेजर्स सी एवरीथिंग। कौन इनिशिएटिव लेता है और कौन सिर्फ वेट करता रहता है। सो इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर वैलिडेशन, स्टार्ट ट्रैकिंग योर ओन प्रोग्रेस। इफ यू आर अनश्योर, don't pause, reach out to colleagues, check process docs, or find a way forward. Managers always value those who move things ahead without hand-holding. Because ownership isn't about knowing everything. It's about figuring things out without giving up. Career के initial years फाउंडेशन बनाते हैं, उन्हें अप्रूवल के इंतज़ार करने में वेस्ट मत करो। आपका इनिशिएटिव ही आपकी विजिबिलिटी बनाता है। These 5 blockers don't make noise, they whisper. And before you know it, they have already slowed you down. So stay aware, keep learning, and keep showing up, not to prove, but to progress. Because real growth isn't about being faster than others, it's about being wiser than yesterday and calmer in your journey.